Hello students, a fresh good morning to all of you. Dear students, in previous class we have completed our English grammar topic active and passive voice. So today we will start a new grammar topic direct and indirect speech. This is the most important topic in English grammar, but it's a very simple. Totally it is based on the rules. If you learn the rules, easily you can change the sentences into direct into indirect. Okay, so now let us start this topic. Get ready. Okay, so डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट हम डायरेक्टली एज इट इज़ जैसे कि जैसे वर्ड्स को बोल दे, और इनडायरेक्ट हम उनको थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज करके जब हम बताते हैं, जैसे कि वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज. हम क्या कर सकते हैं, एक स्पीकर के वर्ड्स को दो तरीके, टू वेज होते हैं हमारे पास उनको कहने के. वी मे यूज़ द, या तो वी मे यूज़ द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ स्पीकर. सुरेश सेड आई कैन सोल्व दिस सम. ये तो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट स्पीच हो गई. एक्चुअल वर्ड्स है वही आपने बोले. द वे ऑफ रिपोर्टिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. वो एक्चुअल वर्ड्स को कहने का जो वे मैथड, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज. और जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो स्पोकन किए हुए होते हैं स्पीकर के थ्रू, वी विल पुट दीज इनटू इन्वर्टेड कॉमाज. There is another way of reporting verbs. Suresh said that he could solve that sum. When we give the substance of what the speaker has said, जब हम ये बताते हैं कि स्पीकर ने क्या कहा, the form of speech द फॉर्म ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. वो जो फॉर्म ऑफ स्पीच होती है वो क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. देर आर नो इन्वर्टेड कोमाज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में देर इज इन्वर्टेड कोमाज, बट देर आर नो इन्वर्टेड कोमाज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. Reporting clause. A reporting clause is in an utterance such as she asked, she said, they informed, Mohan inquired, Neetu exclaimed. ये हमारी reporting clause होती है that identifies the speaker and tone of the reported clause in either direct or indirect speech. In the above examples, Suresh said is the reporting clause, reported clause. ये तो reporting verb you can say, reported clause and reported speech you can say. A reported clause can be defined as the words uttered by the speaker. In the above examples, I can solve the sum is the reported clause in direct speech, and that he could solve that sum is the reported speech. I can solve the sum क्या रहेगा आपका, reported clause, ये reported speech. Rules for changing direct speech into indirect speech. In direct speech, the actual words of the speaker are put with inverted commas. Indirect speech में तो क्या होता है कि जो words होते हैं वो आप किस में रखते हो, inverted commas में रखते हो. And the reported speech is separated from the reporting clause. और reported speech वो किससे separate की जाती है, reporting clause से, by a comma और colon. The first word of the reported speech begins with a capital letter. और जो first word होता है reported speech का, वो उसका जो first letter होता है वो capital होता है. तो it is clear to all. So now in the indirect speech no inverted commas are used. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कोमाज यूज नहीं होते हैं. द कोमा एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज रिमूव्ड. वी विल रिमूव ऑल द कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज. द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विद सम कंजंक्शन. रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे बिगिन होती है, सम कंजंक्शन, जैसे कि दैट, इफ, व्हाट, व्हाई. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज इज नेवर चेंज्ड. रिपोर्टिंग क्लोज है उसका टेंस चेंज नहीं होता, बट द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. Only full stop is used at the end of the indirect speech. There are no interrogative or exclamation marks. Just we will make simple sentence. Okay. Rules for the change of pronouns. देखो pronoun होते हैं, reported speech होती है वो हमारी pronoun से start होती है, तो उसके कुछ rules हैं. रूल्स आपका रहेगा जैसे 1 2 3 SON वाली टेबल याद रखेंगे बच्चे. SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है.
फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगी उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, थर्ड पर्सन जो होता है ना ही शी इट, वो हम चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई होता है, प्लूरल में वी होता है, ठीक है, और यू दे होते हैं। Now you can see the examples here. He said, I write a letter. तो he said, कोमा रिमूव करेंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही एंड राइट यानी कि टेंस चेंज होगा, टेंस हम चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट, वो एक टेबल आपको गिवन मिलेगी बेटा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट के फोर चेंज इनटू पास्ट फोर। ओके, देन ही सेड टू मी, यू राइट अ लेटर, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, and me का subject, I wrote a letter. Okay, he said to me, he writes a letter, he told me that he write a letter. If there is no object after the reporting verb, we can supply one ourselves and change it according to the rules given above. A change of words expressing time, कुछ words हैं जो हम time के words हैं, कुछ adverbs हैं हमारी जो हम change करेंगे, जैसे कि today change into that day, yesterday change into the previous day, tomorrow change into the next day, last night the night before the previous night, next week the following week, next year the following year, last week the previous week, previous year, now, then, before, ago, before, just, then. So my dear students, I hope you will listen this video carefully. Thank you. Have a nice day बच्चे.